Welcome to VLearn. This is session third of system analysis and design. Today we are going to cover different topics like system design consideration, system design, structure design, modularization, design process, prototype design. Now let's firstly talk about the system design. There are two levels of process of design. First one is logical design and the second one is physical design. In the logical design, we describe the structure and the characteristics of features like outputs क्या होंगी, inputs क्या होंगी, databases क्या use किए जाएंगे, procedures क्या होंगे. All these parameters are covered in the logical design. Apart from this, इसके अलावा हम और क्या चीज़ें cover करेंगे? This logical design will produce a specification of the major feature of the new system which meet the system objective. जो important parameters है, unique parameters हैं एक सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो सारे के सारे important parameters हम कलेक्ट करेंगे ड्यूरिंग द लॉजिकल डिज़ाइन. अगर हम लॉजिकल डिज़ाइन के बारे में बात करें तो समटाइम वी थिंक दैट अ लॉजिकल डिज़ाइन बेसिकली प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ द न्यू सिस्टम. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट. हम जब लॉजिकल डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं लाइक आउटपुट जिसको हम इवेल्यूएट कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड डिस्प्ले, व्हाट इज़ गोइंग टू बी डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ द यूज़र. इनपुट्स की जब बात करें तो इनपुट कैन बी डन बाय मीन्स ऑफ फॉर्म्स, स्क्रीन्स एंड डायलॉग्स वगैरह. प्रोसीजर्स, another important component of the system logical design is procedures. That is the structure of procedure to collect, transform and output the data. Another is storage, where the data is stored basically, and that should match with the requirement for the data. Another important parameter of the logical system design is controlling. Controlling is evaluated in terms of integrity, security and procedure for recoveries. Now further we are going to talk about the physical design. Physical design क्या होता है? It produces the program specification, that is physical file or databases and user interfaces for a selected target, hardware and software. एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कौन सी फाइलें चाहिए, कौन सा डेटाबेसेस चाहिए, क्या इंटरफेसेस चाहिए, सो दैट हम कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को टारगेट्स सेट करके अचीव कर सकें. These programs and file will fulfill the logical design requirement but may be subject to some constraint and compromise. Right. Now, when we are developing the design of any system, then there are certain objectives that must be fulfilled before while designing the system. तो जब हम सिस्टम डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं तो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना होता है और वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी. दैट इज़ सिस्टम डिज़ाइन कुछ इस टाइप से बनाना चाहिए जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल हो सके. रियलिस्टिक काइंड ऑफ डिज़ाइन होना चाहिए. एक फ्लाई टू स्काई वाला नहीं होना चाहिए कि जिसको आप फुलफ़िल, जिसको आप एक्चुअल में पूरा ही नहीं कर सकते. अपार्ट फ्रॉम दिस, एफिशिएंसी, डिज़ाइन मस्ट be developed in such a way so that the things can be done in an efficient manner. Obviously, another important aspect is cost. It should justify the cost also. Flexibility, ऐसा बोला जाता है कि डिज़ाइन चाहे कोई भी है, चाहे फैशन डिज़ाइनर का डिज़ाइन हो, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन हो या सिस्टम का डिज़ाइन हो, जब तक उसमें चेंजेस कैपेबिलिटीज़ इंट्रोड्यूस नहीं की जाएंगी, मीन्स उसको चेंज करना अलाउ नहीं किया जाएगा, तब तक वो एक फुल्ली फ्लैट डिज़ाइन नहीं माना जाता है. वी कैन कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ DMRC प्रोजेक्ट. हमारी दिल्ली में जितना भी DMRC प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी उसकी ब्यूटीफुल फीचर है ही यही कि वो प्रोजेक्ट जो एक जगह के लिए पहले आया था, मास्टर प्लान जिसको हम बोलते हैं, वो पूरी दुनिया, पूरी दिल्ली को कवर कर रहा है. तो इट इज़ द बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दैट मास्टर डिज़ाइन दैट हैज़ अलाउड द डिफरेंट people at different level to make some changes. Another important parameter of system design is security. Yes, security plays a very prominent role in the system design. So it must be kept in the mind that system design must be
equipped with the full security. Now there are certain limitations that our system design has to face, and that constraints could be in terms of hardware, in terms of software, in terms of budget, time scale, and interfaces with that of the other system. So these are the basic constraints or restrictions that directly or indirectly can affect to our system design. So it must be choose with a very like justified manner so that the things can be done in a proper manner. Now let's talk about further we talk about the structure design. Structure design is a systematic approach of problem solving. जब आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच को स्टेप वाइज अप्रोच को फॉलो करते हैं टू रिजॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन टू द डेटा एंड लॉजिक. So such kind of problem resolution approach is called as a is possible because of the structure design. It is essentially a top down consisting of hierarchy of modules having single entry and single exit subroutine. Sometimes it become very difficult to analyze कि हम कैसे पहचाने कि ये structure design है या नहीं. So our designers and other professionals has given a very flexible way of identifying whether the things are done in a top down manner or not. That is, you have to just identify that if a design is having a single entry as well as single exit, then that design is considered as a structured design. अगर एक डिज़ाइन में मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल एग्जिट्स होंगे तो हम उसको अकॉर्डिंग टू द सिस्टम डिज़ाइनिंग एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग उसको हम एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं कह सकते हैं, राइट. अ लॉजिकल सिस्टम डिज़ाइन इज प्राइमरी कंसर्न विद द फाइल एंड डेटाबेस टुगेदर. दो पैरामीटर्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं. फर्स्ट वन इज फाइल प्लस डेटाबेस. व्हाट आई यूज दीज टू वर्ड, दैट इज फाइल एंड डेटाबेस. ये दोनों एंटिटीज कंबाइंड होके क्या बनाते हैं हमारे लॉजिकल सिस्टम डिज़ाइन. एंड दीज टू कंपोनेंट मस्ट बी टाइड टुगेदर विथ स्पेसिफिक इंटरफेस टास्क सच एज फॉर्म एंड स्क्रीन डिज़ाइन. सो इट विल हेल्प अस टू डिज़ाइन द system. Apart from this, if you talk about the structure design, then structure design is basically based on to the flow of the data. Structure design partitions a program into the small independent modules. Structure design की beautiful feature यही है कि वो प्रॉब्लम को डिवाइड करता है उस लेवल तक जहाँ तक कॉम्प्लेक्सिटी ख़त्म नहीं होती है. टिल देन वो एक पार्टीशन ही करता चला जाता है. दे आर ऑर्गेनाइज द डेटा इन ए टॉप डाउन मैनर. स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज बेसिकली यूज टू मिनिमाइज द कॉम्प्लेक्सिटी. जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज किया था तो एक पॉलिसी अप्लाई की थी, एक स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी, बेसिकली डिवाइड एंड रूल. स्ट्रक्चर डिज़ाइनर्स ने भी उन्हीं के इसी वर्ड्स को चुरा लिया, दैट इज डिवाइड एंड कन्क्वेयर स्ट्रैटेजी. इट मीन्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन हाईली फोकस ऑन दिस स्ट्रैटेजी that if you want to resolve the complexity at the design level, then firstly divide the entire design into the smaller pieces till the moment the complexity is not reduced, and then solve module by module so that ultimately you will come to know then that the entire problem get resolved automatically, right. Now फर्दर वी आर गोइंग टू कवर सम मेजर सिस्टम डिज़ाइन एक्टिविटीज़. जब हम डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं तो हम बेसिकली कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू कवर दिस थिंग. फर्स्ट पैरामीटर इज डेटाबेस डिज़ाइन. डेटाबेस डिज़ाइन मीन्स बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग द डिज़ाइन ऑफ फिजिकल डेटा. फिजिकल डेटा मीन्स कौन सी ट्रैक, कौन से सेक्टर, कौन से सिलेंडर, कौन से मेमोरी एड्रेस में हमारी फाइल अल्टीमेटली जाकर स्टोर होगी. जब हम इन पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉक डिज़ाइनिंग द फिजिकल डेटा. प्रोग्राम डिज़ाइन. प्रोग्राम डिज़ाइन मीन्स कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाएगी. हम प्रोग्राम डिज़ाइन में ना केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग बात करते हैं, रादर वी ऑल्सो प्रिपेयर द फ्लो चार्ट. कोडिंग हम तैयार करते हैं. डीबगिंग, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर. डीबगिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर. System and program test preparation.
Each module will be tested after completion. तो डिज़ाइन में हम ये तीन एक्टिविटीज़ है जिसके ऊपर हाईली फोकस करते हैं. आई एम समराइजिंग ऑल दीज थ्री पैरामीटर्स. दैट इज फर्स्टली प्रिपेयर द डेटाबेस डिज़ाइन, देन प्रोग्राम डिज़ाइन, देन सिस्टम एंड प्रोग्राम टेस्ट प्रिपरेशन. राइट. So next one is modularization. Structure design partitions a program into small independent modules. हमारे स्ट्रक्चर डिज़ाइन को हम डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंटली रन करते हैं. मीन्स व्हेन वन मॉड्यूल इज वर्किंग इट विल नॉट अफेक्ट द फंक्शनलिटी ऑफ अनदर मॉड्यूल. एंड दीज आर अरेंज इन ए हायरार्की. Modules and their relationship to one another in a form called structure chart. Modules और उनका relationship with that of the form or other modules are represented graphically by means of structure chart. Now to minimize the complexity of the problem and make it manageable by subdividing it into smaller segment is called modularization or decomposition. अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम सिंपल सी बात समझ सकते हैं. दैट इज मॉड्यूलराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ स्मॉलर सेगमेंट्स और मॉड्यूल्स. और इस पूरे प्रोसेस को जिसमें एक बड़ी सी प्रॉब्लम को या एक बड़े से मॉड्यूल को हम स्मॉलर सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, इस एंटायर प्रोसेस को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? decomposition. And it is the most important part in the entire system analysis and designing. Now while decomposing, one important parameter that you have to always kept in your mind before doing decomposition, that decomposition must be done in such a manner so that if one module is working then it should not be affected by the functionality of another module. अगर एक मॉड्यूल दूसरे से अफेक्टेड हो रहा है इट मीन्स आपने डिकम्पोजिशन का प्रोसेस या मॉड्यूलराइजेशन जो आपने अप्लाई किया है वो सही नहीं हो पाया है. आप देखिए हम मोबाइल पे जब डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करते हैं, अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज जिस नंबर पे किया जा रहा है इसका मतलब ऑटोमेटिकली कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसी पर्सन को ऑटोमेटिकली फ़ोन कॉल किया गया है जब तक कि आप उस नंबर को एग्जैक्टली प्रेस नहीं करते हैं. जब इसी टाइप से जब आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कैमरा ऑन नहीं होता. जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट फैसिलिटीज़ वाले फीचर इन्वोक नहीं हो पाते. तो अगर हम मोबाइल के हिसाब से भी समझना चाहें तो वहाँ पर भी मॉड्यूलराइजेशन को उसी टाइप से मेंटेन किया गया है कि जब अब एक फीचर चल रहा होता है तो वो दूसरी चीज़ को अफेक्ट नहीं करता है. राइट. आई थिंक यू आर एबल टू गेट माई पॉइंट. नेक्स्ट इज डिज़ाइनिंग प्रोसेस. व्हेन वी आर गोइंग टू डेवलप द सिस्टम डिज़ाइन तो हम ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं एक सिस्टम डिज़ाइन को प्रिपेयर करने के लिए. फर्स्ट वन इज़ आउटपुट डिज़ाइन. डिज़ाइनिंग प्रोसेस बेसिकली इन्वॉल्व्स द डिज़ाइनिंग ऑफ द आउटपुट, दैट इज़ द नॉलेज ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट. हम किसी भी चीज़ की आउटपुट को तभी समझ सकते हैं, तभी डिज़ाइन कर पाते हैं जब हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट के बारे में पूरी नॉलेज होती है. राइट. नेक्स्ट वन इज़ इनपुट डिज़ाइन. इनपुट डिज़ाइन इन्वॉल्व्स the new document that should be added or input so that desired output will come out. So input design में हम वही चीज़ें ऐड करते हैं जिनको ऐड करने से हम desired output को जनरेट कर सकते हैं. Next one is file design. The input data is captured in system will be stored in the files. Right. Next one is procedure design. How processing will be done. Two aspects, that is कंप्यूटर एंड नॉन कंप्यूटर प्रोसीजर. जब हम प्रोसीजर डिज़ाइन की बात करते हैं तो हमें इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर हाईली फोकस करना होता है, कंप्यूटर पे एंड नॉन कंप्यूटर प्रोसीजर पे. तो इसको भी डिज़ाइन किया जाता है, इसको भी प्लान किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल डिज़ाइन. दिस डिज़ाइन इंश्योर्स करेक्टनेस ऑफ प्रोसेसिंग, वेदर द थिंग्स आर गोइंग एज पर द स्पेसिफिकेशन और नॉट. दिस इज बीइंग इंश्योर्ड इनसाइड द कंट्रोल डिज़ाइन. Next one is prototype design. Prototype designing is a very important design phase while designing the system. So prototype is what basically? It's a working system that is developed to test ideas about the new system. Sometimes
इट इज़ नॉर्मली अक्कर दैट हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सही से जज नहीं कर पाते हैं। आल द कस्टमर इज़ टेलिंग एट देयर एंड, हम भी समझ रहे हैं, बट फिर भी जो रिजल्टेंट आउटपुट निकल के आना चाहिए था वो नहीं निकल के आ रहा है। सो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग मॉडल फॉर द सेम। जितना कस्टमर ने बताया या जितना हमें समझ में आया, हम उसके बेसिस पर एक वर्किंग सिस्टम को प्रिपेयर कर देते हैं और उस वर्किंग सिस्टम को हम कस्टमर को शो कर देते हैं। इफ़ कस्टमर उस पायलट मॉडल को अप्रूव करता है तो हम फाइनल प्रोडक्शन जो है ना, फाइनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आर्किटेक्ट बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, वो डिफरेंट 2, 3 और 4 मॉडल एज वाज स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर, जो उनको समझ में आता है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उतने मॉडल्स बनाते हैं। और बिफोर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग दे जस्ट मेक अ शो केस ऑफ दैट मॉडल इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, उसको दिखाया जाता है और कस्टमर जो भी उस टाइम पर चेंजेस या शॉर्टकमिंग्स या ड्रॉबैक्स बताते हैं उनको रेक्टिफाई करके एक फाइनल मॉडल बना दिया जाता है। जब कस्टमर वहाँ पर अपना ग्रीन सिग्नल देता है कि नाउ इट्स ओके एट देयर एंड, so after that our constructor basically start the construction of building. Similarly the same thing happen in case of software development also or system development also. Software development and system development both are not only the time consuming task, rather it involves a high involvement of money. So time, cost, effort, everything is involved in bulk amount in the software as well as system development. So before actually developing the system as well as software, we prepare the prototype design for the same. So the prototype is actually a pilot or test model. It is designed to easily changed. Prototype are considered to be the most useful in the following condition. अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि आपको कैसे जजमेंट करनी होगी कि कब आपको प्रोटोटाइप बनाना है और कब आपको प्रोटोटाइप नहीं बनाना है, राइट। सो व्हेन द इसेंशियल फीचर ऑफ द सिस्टम आर ओनली पार्शली नोन, वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको मालूम होने चाहिए बट मालूम नहीं है, आधे मालूम है आधे नहीं मालूम है, तो उस कंडीशन में आप प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए या रिक्वायरमेंट्स को जस्टिफाइड मैनर में एक्सट्रैक्ट करने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल रेफर द प्रोटोटाइप डिजाइन। Next one is the system users will participate in the development process. जब हमारे सिस्टम यूजर्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस पे, तब भी हमें प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है। Now I think you people are able to understand the concept that was given by the previous slides. So I hope you will be able to give the answer of these two questions. You have to write 10 points on each question. First one is, what do you understand by the structured system design? Structured system design की हम बात कर रहे हैं। Next one is, what do you understand by the modularization? It is one of the most important question from the examination point of view. Thank you.